Last lecture 1.3, which was the last sum we did? The fourth one we did, right? Now the fifth one. But mark it, the fifth one is your homework. I am not doing that. Again, the balanced dice are thrown simultaneously. Now pay attention. Balanced dice 2, if they are thrown together, what are the total outcomes? 36. And then they are saying the sum of the numbers is multiple of 2. The number is multiple of 2 or 3. So in between you have this word or, it indicates. Okay, we need to find A union B. So for that event 2 को हम ये A ले लेंगे, event 3 को हम B ले लेंगे. The sum of the number is a multiple of 2. The total is multiple of 2. So if I see the outcome, the total is multiple of 2. So 1 की series में पकड़ो. 1 3 1 1. But 1 plus 1 is 2. So can I say that is multiple of 2? Then 1 3 1 5. Then 2 2 2 4 2 6. इस तरह से the sum is multiple of 2. Then 3 की series पकड़ो, 4 की series पकड़ो खुद से. Then the number is multiple of 3. तो 1 की series में कौन सा आएगा? सबसे पहला 1 2 1 5. Then 2 की series में 2 1 2 4. 3 की series में 3 3 3 6. इस तरह से करो. Then you find their intersection. And what is the ultimately formula for A union B? P of A plus P of B minus P of A intersection B. Sure? So that's your homework. Sixth वाला sum करते हैं. चलो. Sixth वाला sum, the probability of the price rise of potato in the vegetable market is how much? 0.8. The probability of the price rise of onion is 0.7. The probability that the rise of both, underline this word, both potato and, तो वो क्या दिया है ढूंढेंगे. Find the probability that the price of, underline the word, at least. But at least keyword is for law of what's the formula? Law of addition. P of A plus P of B minus P of A intersection B. Now if you read the entire sum properly, now we are given with all three information. We just need to write it down, put it in the formula, and the sum is over. 3 mark in our pocket. Start करो लिखना. Probability of event A that the prices of the potato would rise. The prices of the potato would rise in the vegetable market is, and फिर ऐसा करके लिखो, P of A is equal to how much amount is given? 0.8. फिर लिखो probability of event B that the price of onion would rise in the vegetable market is, तो इस तरह से लिखो बेटा, probability of B is 0.8
7. Probability that the price of both potato and onion, underline the word and, price of potato and onion would rise in the vegetable market. Now beta, and was keyword for which of the events? The word and, the keyword is for which of the events? And intersection. It was for the intersection. I'm talking about events. हमने थियरी बेटा ध्यान से पढ़ी नहीं है जब मैं लिखवा रहा था. It's okay. So it is A intersection B. How much is the amount? It is 0.63. 6. 0.6. Okay. And now you write probability that at least one of the price of any two item would increase. Underline the word at least. That's the key word for law of addition, which is what? तो लिखा जाए therefore probability of A union B is equal to PB minus A intersection B. तो 0.8 plus 0.7 minus 0.6 तो 0.9. But are you able to interpret what answers you are getting? 0.9 ये जो आंसर आया है, what is the interpretation of this answer? But what is the interpretation of the answer? कि ऑनियन या तो पोटैटो, उसमें से किसी एक के तो प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे, और उनका इंक्रीज होने का चांस कितना है? 0.9. मतलब if I talk in percentage, it's 90% चांस कि दोनों में से किसी एक का आइटम का भाव डेफिनेटली बढ़ेगा. That's the probability what you are finding. Are you getting what I am trying to say? Yes. No. Yes. Never. Sure. अच्छा, ये वाले सम में डिफिकल्टी क्या थी? कुछ नहीं, सब प्रोबेबिलिटी उन्होंने ढूंढ के दे दी थी. अपने को खाली फॉर्मूला में अपने गुजराती में कहीं ना गोठवવાનું હતું. फॉर्मूला में બધું આપણે, but we don't know what are the keywords. At least बोले तो क्या ढूंढने का है? We are blank. And है तो क्या है? We are blank. Ultimately, you have not learned the theory. Moral of the story: start learning that, you will start understanding. Next वाला सम उठाते हैं. Same types. Every information is given. Just put it in the formula. Start करो. बुराउद्दीन भाई सम पढ़े यार, बहुत बड़ा, मैं नहीं पढ़ूंगा ये. Two aircraft drop bombs to destroy a bridge. हाँ, मतलब देखो तुम किस में निकले हो? बेटा तुम किस में निकले हो? एयरक्राफ्ट में. क्या लेके? गिराओ बेटा, गिराओ. आगे. The probability that a bomb drops from the first aircraft hits the target is 0.9. बराबर है, मतलब ये समझ में आया. पहला प्लेन जो बॉम्ब लेके जा रहा है, उसको ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है. अब उसका बॉम्ब वो ब्रिज पे हिट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी? मतलब हमको ढूंढनी नहीं है प्रोबेबिलिटी, सीधा आगे पढ़ो. And the probability that a bomb from the second aircraft hits the target is 0.7. या दूसरा टारगेट कौन हिट करेगा? The second aircraft, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7. बहुत बढ़िया. आगे. The probability of one bomb drop from both the aircraft hitting the target is 0.63. Underline the word both. बेटा ये क्या है? both बोले तो कहना से पहला एयरक्राफ्ट भी बॉम्ब फेंकेगा एंड दूसरा
दूसरा भी फेंकेगा, मतलब ये पॉइंट 63 क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है। हम लिखेंगे बेटा, हम सारी चीज लिखेंगे, अभी तो खाली डिस्कस कर रहे हैं। आगे The bridge is destroyed even if one bomb drops on it. या Find the probability that the bridge is destroyed. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज, मतलब मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है, द ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं। तो लेकिन ब्रिज डिस्ट्रॉय कब होगा बेटा, ब्रिज डिस्ट्रॉय कब होगा बेटा, उस पर एक बॉम्ब गिरना चाहिए। कितना? तो अगर ब्रिज डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस पर एक बॉम्ब गिरना चाहिए, तो मुझे ढूंढना क्या है, ए कैसे पता चल रहा है, ए यूनियन बी ढूंढना है, कैसे पता चल रहा है? हाँ जानवी, U is equal to 1. बेटा नो नो नो, बैंग योर फेस, नो नो, दीवार नजीकी है, गलत है, गलत है। ए यूनियन बी क्यों ढूंढना है, क्या दिया है? हाँ हाँ हाँ, राव राव राव, बहुत सही जा रहे हैं। दोनों में से कोई एक बॉम्ब से ब्रिज को टूटने वाला है। हाँ तो और फर्स्ट एटलीस्ट एटलीस्ट वन के और कैसे, और सर 1 और 2 दोनों में से कोई एक से तो ब्रिज टूटने वाला है। ओके, तो क्या से उसका जरा एक्सप्लेनेशन तुमने जरा समझा। हमको ब्रिज क्या करना है, डिस्ट्रॉय। सी दे हैव नॉट क्लियरली सेड अपने को ढूंढना क्या है, तुमको बुद्धि चलाना पड़ेगा। ब्रिज डिस्ट्रॉय कब होगा, कहने से पहला एयरक्राफ्ट जो बॉम्ब लेके जा रहा है उसने बॉम्ब ड्रॉप किया और बॉम्ब हिट हुआ, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया। और दूसरा प्लेन जा रहा है तो दूसरे ने वो ब्रिज हिट किया तो भी वो डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा ना। तो दोनों में से कोई भी एक अगर बॉम्ब थ्रो करके ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आई कैन से ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। फिर पहले वाले ने करा कि दूसरे वाले ने करा, अपने को कोई फर्क पड़ता है, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया। जानवी बेटा कौन सी कहानी कर रहे थे, ए यूनियन बी यू है तो मुझे वो ढूंढना, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे तब ऐसा आएगा ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो पता चल रहा है वो और वाला कंडीशन कैसे आया। अरे बोलो ना, या तो हर्षित वाला भी एक्सप्लेनेशन हम ले सकते हैं कि कोई एक एटलीस्ट एक बॉम्ब गिरा दो, एटलीस्ट कोई एक बॉम्ब गिरा दो, ब्रिज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। अपने को खाली लिखना है, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए that bomb from the first aircraft hits the bridge। तो बेटा उसमें अपने को पा दिया है, पा कितना है, पा 0.9। बेटा अंग्रेजी कुछ आने लगा तुमको, तो फिर दूसरा इवेंट लिखो ना इंग्लिश में। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट बॉम्ब फ्रॉम द सेकेंड एयरक्राफ्ट हिट्स द ब्रिज। शाबाश, तो कम ऑन, हिट द ब्रिज। कितनी है बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी, 0.7। પછી લખો probability that bomb from both the aircraft, probability that the bomb from both the aircraft, probability that the bomb from both the aircraft hitting the bridge is कितना है,
So beta probability of A intersection B is 0.63. अरे हाँ के ना, नहीं आप जरा लिखो probability that the bridge is destroyed. Probability that the bridge is destroyed. It means that bomb from the first aircraft or bomb from the second aircraft hits the target. Hits the target. Can I say bomb from any of the aircraft, if it is hitting the bridge will be destroyed. But now just put it in the formula. Show your talent. Come on. A union B. A union B. What's the formula? PA plus PB minus A intersection B. So बड़ा कितनाज आ रहा है? कितनाज? 0.9 plus 0.7 minus 0.63 0.97 बेटा 0.97 आले। अरे बोलो ना यार, sum is over, turn the page। कहना से ऐसे वाले सम ज्यादा इजी हैं कि जहां पर सीधी सीधी प्रोबेबिलिटीज दे दी है, हमें खाली आइडेंटिफाई करना है कि अपने को ढूंढना। द नेक्स्ट वाला 8th वाला सम भी उसी के जैसा ही है, बट मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट्स द रीडिंग्स, starts the readings. The probability that a teenager coming to a restaurant will order pizza. बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है कि वो पिज्जा ऑर्डर कर रहा है? 0.63. Then he is ordering a cold drink. 0.54. The probability that a teenager order at least, underline the word, at least. बेटा ये क्या दिया है? At least. At least. Union. के इंटरसेक्शन, यूनियन वाले कितने जन बोलते हैं ये यूनियन है? ओहो, किसे पता चल रहा है? बेटा पता चल रहा है मेरे कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट थे जीवन में, जो तुमने पढ़े ही नहीं है। एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, एटलीस्ट, तो यहाँ समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट बोले तो क्या है ये? ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं। Find the probability that a teenager coming for a dinner on a certain day order only one of the two items from pizza and cold drinks. Read it again. You need to raise your hand और तुम्हें मुझे बताना है कि मुझे ढूंढना क्या है। जिसने वो बता दिया बेटा चॉकलेट मिलेगी। हाँ बुराउद्दीन, जो टीनेजर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों में से कोई एक, हाँ पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, हाँ तो ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन भी तो तुम बोल रहे हो बेटा पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, तो और वाला शब्द तो कीवर्ड यूनियन का है बुराउद्दीन, और शब्द तो यूनियन का है ना? तो तुम्हारा आंसर गलत है। बड़े शाबाश, चलो बोलो ना यार। एनीबॉडी ढूंढना क्या है? यस जैमिनी। So we have to find A union B dash plus A dash union B. एक मिनट पहले मेरे को लिख लेते। क्या 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 क्या? A union A यूनियन B डैश प्लस A dash हाँ union B. ओ स्कूल में कराया है। ऐसा नहीं हुआ सर। हाँ तो समझा कैसे आए ये? फिर हम देव से भी पूछेंगे। अरे बोलना ये सही है कि नहीं, मैंने बोला नहीं है देव, मैंने ऐसा बोला नहीं है सही है कि गलत है। हाँ बोल बोल बोल, कैसे कैसे? सर ऐसा लिखा है कि only one of या तो पिज्जा या तो कोल्ड ड्रिंक, मतलब दोनों में से एक नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, उसका उल्टा।
तो इसमें दोनों का यूनियन 2 प्रोबेबिलिटी आएगी, या तो वो कोल्ड ड्रिंक लेगा या तो वो पिज्जा लेगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रही हो? सीधा कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस कर दो। तुम्हारा आंसर सही है, आंसर सही है। देव देव देव, तुम क्या बोल रहे थे? क्या दिया है? एंड दिया है। नहीं 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 बेटा, जेमिनी का आंसर सही है, लेकिन आंसर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसको मेरे को सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तुमने बेटा डिफरेंस इवेंट की थियरी कभी पढ़ी थी? पेज नंबर 8 पर जाओ बेटा। डिफरेंस इवेंट इज इट ऑन पेज नंबर 8? देखो, मैंने थियरी तो क्या, पेज नंबर भी याद कर लिया था बेटा। मिला डिफरेंस इवेंट की कोई थियरी मिली वहां पर? अच्छा, हैव यू अंडरलाइंड कीवर्ड्स? करे तो बहुत सबकी था सर, मेरे को पता नहीं, लेकिन याद कुछ नहीं आता है बेटा। वहां पर ऐसा लिखा है डिफरेंस इवेंट में एनी ऑफ द 2 इवेंट्स ए अकर्स बट बी डज नॉट अकर। अब वो कीवर्ड्स खाली वहां पर दिखाने का पर्पस ये था। अब समझा रहा हूं बेटा, यहां ध्यान दो। दिस इज अल्टीमेटली जेमिनी व्हाट यू सेड, इट्स अ डिफरेंस इवेंट। ओके बेटा, समझ में आया किसी को सम अभी तक? नहीं। इधर समझो बेटा, हम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, पिज्जा। उसको अगर मैंने इवेंट ए बना लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है पिज्जा की? पॉइंट। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हमने मंगवाया? कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है? 0.54। अब बेटा ऐसा बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तुमने इसमें से किसी एक को मंगवाया, एटलीस्ट। बोले तो ए यूनियन बी भी दिया है, जिसका फॉर्मूला क्या है? अरे दिया है क्या? तुम अपने दिमाग के चरखे घुमा रहे हो। 0.88 दी तो है प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला बता के क्या होशियारी झाड़ रहे हो मेरे सामने? खत्म हो गई ये बात। ये दिया है सम में, देखो ना बेटा। तुमको समझ में आ रहा है कौन सा सम कर रहे हैं? तो अब इधर समझो, पिज्जा का मेरे को प्रोबेबिलिटी दिया है, कोल्ड ड्रिंक का प्रोबेबिलिटी दिया है, एटलीस्ट दोनों में से कोई एक मंगाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट गोइंग, टीनेजर गोइंग, ऑर्डर एनी ऑफ द वन आइटम, ऐसा कुछ लिखा है, देखो तो। ओनली वन ऑफ द 2 ऐसा लिखा है। द टीनेजर विल ऑर्डर ओनली one of the 2 items. He'll order only one of the 2 items. मतलब क्या? If he orders pizza, तो can I say cold drink will not be ordered? If he order pizza, then cold drink will not be ordered. Yes or no? Or if he orders cold drink, then pizza will not be ordered. अरे बोलो ना यार। तो कैन आई से अगर उसने पिज्जा का ऑर्डर दिया तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाएगा? सो कैन आई से अगर पिज्जा मंगाया तो नो कोल्ड ड्रिंक? सो ए माइनस बी। पिज्जा मंगवा लिया तो नो कोल्ड ड्रिंक, ए माइनस बी, एनी ऑफ द 1 इवेंट विल अकर। पिज्जा ऑर्डर करा तो फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा। हमने डिफरेंस इवेंट में ये सीखा था कि भाई 2 जन अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक को अगर जॉब मिल गई तो दूसरे को जॉब, तो इसीलिए ए माइनस बी हमने ऐसा डिफरेंस इवेंट निकाला था। बीच में और है प्लस, अगर उसने कोल्ड ड्रिंक मंगाया तो पिज्जा नहीं मंगवाएगा। तो यहां बेटा डिफरेंस इवेंट ढूंढने का था। क्या था? अब बेटा वापस पेज नंबर 8 पर जाओ, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला भी याद नहीं है। कसम से, कसम से
बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, फॉर्मूला है क्या A माइनस B का? देखो 3 फॉर्मूला है, 3 कौन कौन से हैं? A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश, પછી A माइनस A इंटरसेक्शन B, फिर A यूनियन B, कहने से वो यहां पर लग सकता है। तो A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस B माइनस A के बाजू के बेस में फॉर्मूला देखो, A यूनियन B माइनस A। तो बेटा A यूनियन B क्या है? 0.88 माइनस P ऑफ B इज 0.54 प्लस 0.88 माइनस P ऑफ A 63। So 0.88 minus 0.54, 0.34 plus, so beta ultimate answer is 0.59। अल्टीमेट मेरा आंसर क्या है? कॉपी कर लेंगे, बोर्ड पर आ गया है। तुम इसको अच्छी तरह से लिखोगे, लेट A be the event, let A be the event that teenager order pizza, बेटा पिज्जा અને પછી B कोल्ड ड्रिंक, ऐसा अच्छी तरह से लिखोगे इंग्लिश में। बेटा your reading of theory things and all should have mattered a lot। ये तुम्हें सब कुछ आता खुद से, लेकिन हमने कुछ ध्यान से कभी ना देखा ना पढ़ा। That's okay बेटा, that's okay।
बेटा नेक्स्ट वाला सम शुरू करें। बेटा थियरी टेस्ट वापस होने वाली है अभी 9th वाले सम में, थियरी टेस्ट। 10th वाले सम में भी थियरी टेस्ट होने वाली है। बेटा स्टार्ट रीडिंग द 9th सम। इफ A and B are mutually exclusive and exhaustive events। बेटा ये मैं रब करूं जब तक दूसरे कॉपी मार रहे हैं, तुम पेज पलट लो, फटाफट पलट लो और देख के बता देना फिर जब मैं पूछूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव એટલે શું અને एग्जॉस्टिव એટલે શું। मैं नहीं देख रहा तुमको। बेटा कितनों ने पेज पलट के देख लिए? नहीं तो आंसर कोई नहीं दे पाएगा। एनीबॉडी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव એટલે શું અને એક્ઝોસ્ટિવ એટલે શું? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हाँ सैफ, किसमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा? ओके, A union B is equal to U, which is a universal set, but that is equal to 1. That is equal to 1. That is most important कि that is equal to 1। लिखना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। बड़ा रब्स कर दूं, रब्स कर दूं। लिखो A and B are mutually exclusive and exhaustive events। जानवी अब तुम्हारा हाथ ऊपर होना चाहिए था, तब तुमने करा ही नहीं हाथ अपना ऊपर। A and B are mutually exclusive and exhaustive events। It means बेटा, it means इस तरह से बेटा एरो करके लिखो, A इंटरसेक्शन B इज नल सेट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इट मींस A यूनियन B इज इक्वल टू U विच इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वल टू U, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ऐसा लिखने का, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है जरा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसा कुछ लिखा है, देखो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B। नाउ यस्टरडे आई मेड यू राइट सम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ A यूनियन B के व्हेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है। तब जरा टर्न करके देखो तो क्या फॉर्मूला था। Can I say A union B is equal to P of A plus P of B? And can I say this is equal to U and that is equal to 1? That's equal to 1. So can I write P of A plus P of B is equal to 1? बड़ा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। Can I write P of A जो है P of A is equal to what? तो यहां पर P of A के बदले 2PB लिख दूं तो चलेगा? So 2P of B plus P of B is equal to 1। बड़ा समझ में आला रिप्लेसमेंट जो करा है, पक्का? Then 3 probability of B is equal to, so probability of B will be 1 by। Are we supposed to find probability of B? No. क्या ढूंढना है? P of A। Therefore P of A is equal to 2 probability of B, that is 2 into 1 by 3, that is 2 by 3। बेटा सम हो गया, तुम्हारी बुक में करने आऊं क्या? सम हो गया।
बेटा डांस, इज इट डन? जोरदार बेटा. सम नंबर 10, mark it a very important sum. I am doing it. I am doing it. पढ़ना शुरू करो. चलो पढ़ना शुरू करो. पहले मैं पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद तुम चालू करोगे. मैं पहले खत्म करूंगा, उसके बाद तुम पढ़ना शुरू करो. इवेंट ए, बी और सी कैसे हैं? 3 events A, B and C in a sample space are mutually exclusive and तो बेटा अभी सीखा mutually exclusive. बेटा अभी सीखा A intersection B intersection C is null set. मतलब तीनों events में intersection is null set and तीनों event का union करेंगे, तीनों event का, तो it will be equal to U, that is equal to 1. आगे क्या दिया है जरा देखो. 4 probability of A is equal to 5 probability of B is equal to 3 probability of C. ऐसा कुछ दिया है. What are we supposed to find? मुझे फाइंड करना है A यूनियन C. बेटा रेज योर हैंड. A यूनियन C का फॉर्मूला क्या निकलेगा? P of A P of बस माइनस A इंटरसेक्शन C. क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. सो A यूनियन C का फॉर्मूला लगेगा P of A प्लस P of दूसरा क्या ढूंढने का है? B यूनियन C. तो बेटा उसका फॉर्मूला बता दो यार प्लीज. P of B प्लस P of C. तो बेटा अगर तुम ध्यान से अगर देख रहे हो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A ढूंढना है, B ढूंढना है, C ढूंढना है. वो आ गया तो ये फॉर्मूला में रख के आंसर तुरंत श्योर. लेकिन अब वो तीनों मिलेंगे कैसे, उसको ध्यान से जरा देखो. ये जो है P of A in all, उसको इक्वल टू K ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे. What we do it? कि this all probability is equal to K. ऐसा हम क्या कर रहे हैं? तो can I say this is equal to this? This is equal to this? And can I say this is also equal to K? फिर इंडिविजुअल करते हैं. Probability of A is equal to K. Therefore probability of A is K by 4. 5 probability of B is equal to K. So probability of B is equal to K by 5. પછી 3 probability of C is equal to K. Therefore probability of C is K by 3. ये जो हम इक्वेट कर रहे हैं वो पता चला? नहीं चला. अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैं अगर तीनों का यूनियन कर दूं, किसका? तीनों का यूनियन कर दूं तो फॉर्मूला क्या बैठेगा? P of A P of B प्लस P of C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. क्यों क्यों क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू 1 ऐसा मैं लिख सकता हूं. तीनों को प्लस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू बेटा व्हाट इज पा? K by 4 PB PC and that is equal to. हेल्प्स करो, आगे सॉल्व करने में हेल्प्स करो. K by 4 K by 5 ने K by 3. बेटा तीनों को प्लस करना यार, हेल्प करो ना. क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ले लो. अब देखो अपनी हालत एलसीएम में तो दुबली पतली है, तो कुछ दिमाग नहीं चलाने का. देखो एलसीएम 2 मिनट में आ जाएगा. 4 into 5 20 into 3 that's the LCM. कैसे करा?
4 into 5, 5 into 3 कितना 60. सो मेरा LCM आया गया कितना 60. ठीक है, कैसे करा पता चला? 9 4 into 5 into 3 60. नाउ टेल मी 4 के टेबल में 60 कब आता है? 4 के टेबल में 15. तो उस 15 को ये ऊपर वाले k के साथ मल्टीप्लाई करो. 15 के बेटा 5 के टेबल में 60 कब आवे? तो वो 12 को ये ऊपर वाले k से मल्टीप्लाई करो. 12 के 3 के टेबल में 20k that is equal to 1. So बेटा 47k is equal to 1. तो 47k is equal to शिशी. तो k is 60. बेटा k is 60 by 47. बेटा k is 60 by 47. कितना पता चला? उसको रिड्यूस करने में तुम अपना दिमाग मत कसो, उतना ही रहने दो. कितना आ रहा है? 60 बाय नो. कहने से अगर मुझे k मिल गया है तो इस k को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो a मिल जाएगा. इस k को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b मिल जाएगा. और कहाँ करूं सब्स्टिट्यूट? हाँ. तो कहना से c भी मिल जाएगा ना. कैसे? जरा देखो कैसे. बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ a is k by बेटा व्हाट इज k? तो बेटा देखो मैं इस तरह से लिख रहा हूं 60 डिवाइड बाई 47 द होल डिवाइड बाई 4. तो कहना से ये 4 यहां पर कट हो जाएगा, नहीं ये 15 हो जाएगा. 15 बाय इट विल बिकम 15 बाय. बेटा पता चला कैसे करा? ना पता चल रहा हो तो बेटा छोड़ देना, ये वो सबसे इजी स्टेप है. k by 5. बेटा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k? 60 by 47 डिवाइड बाय 5. 12 by 47. बेटा k by 3. तो 60 by 47 डिवाइड बाय 3. 20 by 47. देखो मेरे को A B C की प्रोबेबिलिटी तीनों की मिल गई है. अब क्या करूं? अब बेटा जो ढूंढना था उसमें डालना है यार. P of A क्या है? 15 by 47 प्लस 12 by 47. हाँ तो ठीक है ना. 35 by 47 मैं कट ही कर रहा था. P of B कितना है? प्लस 20 by 47 तो 32 बाय. खत्म. सम्स ओवर हो गया है. बेटा बोर्ड पर से देखे बिना ट्राई मारो तो ज्यादा समझ में आएगा. इफ यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन डोंट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड. ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. If you stuck up anywhere, you look at the board. ये तो बाजू वाले की बुक है ही. चालू करो.
बेटा इसके बाद सम नंबर 11 भी होमवर्क में मार्क करो. सम नंबर 11 इज योर होमवर्क. देन इलस्ट्रेशन 22, 23, 24, 25, 26. बस बेटा tomorrow when we are meeting, ये लास्ट 12th वाला सम करके the exercise will be over. The exercise. Okay, then we'll start with a new exercise. बंद कर दे इसमें.